ये योगा सिस्टम्स एक्चुअली शुरू हुआ था टुवर्ड्स द एंड ऑफ या टुवर्ड्स द स्टार्टिंग ऑफ जनवरी, फर्स्ट वीक। एग्जाम्स की वजह से अभी तक चल ही रहे योगा सिस्टम। ठीक है, एनीवे, लेट अस ट्राई टू कंप्लीट दिस टुडे। लेट मी शेयर द स्क्रीन, बट बिफोर दैट, योगा सिस्टम्स में हम अभी तक दो चीजें डिस्कस किए थे खास करके, व्हाट इज योगा एंड among different types of yogas, what is karma yoga? बस इतना ही डिस्कस किए। So let us start with few like just these two questions. योगा क्या है? Right? Let us start with this question. योगा क्या है? जो भी सुने हैं, would like to I would like you to raise your hand or do something and answer like योगा क्या है, इसको बताएंगे। Anybody is ready to speak? What is yoga? Connection with the Supreme Lord, Prabhuji. Connection with the Supreme Lord. Yes, thank you. Anybody else? भगवान से जुड़ना, योग का मतलब है जुड़ना। किससे जुड़ना? वो भगवान से है। इसके कई सारे डेफिनेशंस है, लाइक बट प्रिंसिपल इज दिस, योगा भगवान से जुड़ना। और कई सारे उसका डेफिनेशंस दिया है। किसी को और कोई शेयर करना चाहेंगे? एनीबडी एल्स वुड लाइक टू आंसर लाइक व्हाट इज योगा? एनीबडी एल्स? काफी लोग है यहाँ पर। आर्या, यस। आर्या, हाँ। Sir, am I audible? Yes, you are. So for me, yoga is like relaxation of the body as well as the mind. Okay. In ancient time, many rishi munis were doing it, not it for like health conscious people, but for everybody who can, no matter what the age is. So it's a relaxation of you of overall what you do in a particular day, in a specific time. It can cure you from any disease. So for me, this is called yoga. Okay. Thank Okay, thank you. Yes, yoga helps you in relaxation. Yoga cures you. And one of the like important things which we have discussed, yoga brings us towards a real self. Like this is like one of the main themes. तो योगा ना, योग करते हैं like it brings in natural happiness, which is our innate nature, right? और कई सारी definitions दिए थे। Maybe directly in the quiz we'll discuss that, because दो तीन हफ्ते से ना हम योगा में अटके हैं। Okay, because you have exams, I do not want to discuss more. Anyway, और कई सारे योग पद्धतियां हैं, मतलब भगवान को पाने के लिए मुख्य रूप से 4 तरीके के योग पद्धतियां हमारे शास्त्रों में बताया है। Anybody knows like what are the 4 ways of getting connected to God which is prescribed in the Shastras? 4 तरीके के योग के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। किसी को याद है? कोई बता सकते हैं? Anybody? धर्म योग, कर्म योग, ज्ञान योग एंड भक्ति योग। या कर्म योग, मतलब कर्म योगा is connecting to God. So karma yoga is using karma connecting to God. Jnana yoga is using jnana, using the process of speculative knowledge, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, ज्ञान के माध्यम से भगवान से जुड़ना। और ध्यान योगा मतलब यूजिंग मेडिटेशन।
and bhakti yoga using the process of bhakti. Okay, तो कर्म योग के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए थे हम लोग. So let me share the screen and yeah, it is 6:47. Roughly maybe 45 minutes like that we'll discuss. Then around 7:30 like that we'll have a short quiz. Okay, 7:45, 7:40 like that. Okay. Just let me. Yes. Okay. ये सब डिस्कस कर चुके हैं. Just I just wanted to show you this slide so that it will help you. Yeah. ये photo बार बार I have shown it at least thrice now. So as you can see here, yoga is connecting ourselves with God, and yeah, these are another other few definitions of yoga. Yes, this also has been discussed. So let me directly jump into today's discussion. Yeah. So कर्म योगा हम लोग चर्चा किए थे. कर्म योगा कर्म के माध्यम से भगवान से जुड़ना. तो इसमें हम लोग चर्चा किए थे हम सबका अपना अपना नेचर है. नेचर के हिसाब से कर्म करना ही होता है. एट प्रेजेंट वी ऑल डू वर्क टू फुलफिल अवर सेल्फिश मोटिव्स. मतलब कुछ ना कुछ चाहिए इसलिए कर्म करते हैं. बट ऐसे कर्म से हम बंध जाते हैं क्योंकि हम कुछ भी इस दुनिया में कुछ भी कर्म करते हैं, वी गेट ए रिएक्शन. ओके, एंड बिकॉज ऑफ दैट we'll have to take birth again to वो जो कर्म का जो फल है उसको भुगतने के लिए we have to take birth again. So इसको how to stop the cycle of birth and death is by connecting. मतलब कर्म करते हैं बट उसको उसमें भगवान को लाते हैं. And we work and with the idea of offering our results to God. Okay, so कर्म में हम कर्म करते हैं बट रिजल्ट भगवान को देते हैं. कर्मयोग में हम कर्म मतलब काम करने से ना हम अटैच्ड होते हैं. बस इतना याद रखिए. काम करने के लिए हम कुछ ना कुछ काम करना ही है, राइट. बट वो कर्म करते हैं और फल भगवान को देते हैं. इन दिस वे वी गेट connected to Lord. So basically this is the conclusion, actually essence of karma yoga. Actions या work we have to do but offer the results to Lord. With this idea we perform if with this consciousness, इस चेतना से अगर हम कर्म करते हैं then ये जो कर्म के जो चक्र है उसमें फंसेंगे नहीं. Okay, so offer a results and take shelter of Lord and add Hare Krishna. So this all has been discussed. ये पहले चर्चा हो चुके हैं. So let me go
Yeah. Okay. Can anybody tell me इस पिक्चर से क्या समझ में आ रहा है? What is the conclusion you derive looking at this picture? Anybody? भगवान नारायण उनके मतलब हर एक मल्टीपल यूनिवर्स निकल रहा है भगवान विष्णु के शरीर से, और उसमें भी भगवान विष्णु है। मतलब उन्हीं का, भगवान नारायण का सबसे विराट रूप है, मतलब मल्टीपल यूनिवर्स अच्छा, जो उनसे निकले। अरे वो तो मुझे दिख ही नहीं रहे भाई। यही Anyway, तो वो तो ब्लर हो गया ना। ओके, लेफ्ट राइट साइड में कुछ दिख रहा है लैडर जैसा। हाँ हाँ, हाँ, उसका पूछ रहा था मैं। मुझे लगा फोटो वायरल कुछ। या दैट इज ट्रू। पीछे नारायण है, नारायण के जो पोर्स है ना, स्वेट पोर्स है, उनसे कई सारे ब्रह्मांड निकल रहे हैं, और हर एक ब्रह्मांड में स्वयं नारायण भी है। यस, दैट इज ट्रू वैभव, थैंक यू। एनीबडी वुड लाइक टू टेल मी लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द फिगर इन द राइट? अरे से वहां पर, यहाँ पर जो है वही पूछ रहा हूँ। डरने की बात नहीं है, तुम लोग यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू। अभी तो शायद एनीवे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, इट डजंट मैटर। प्लीज स्पीक अप, प्लीज स्पीक अप। आपका प्रभु जी। हाँ, आकृति इज हियर। यस। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, तो हमने लाइक 4 तरीके के जो योगा पढ़े थे, तो उस हिसाब से बताया गया है कि जैसे ज्ञान योग है, तो ज्ञान योग के थ्रू हमें एक ब्रह्म की रियलाइजेशन होती है। अरे अरे, तो रुक कहा जाओ, जा रुक जाओ। मैं अच्छा, अच्छा इधर लिखा है, ओके ओके। हाँ जी, इसमें लिखा है प्रभु जी, वही उसी के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये सिर्फ एक कंपोनेंट है। उसके बाद जो ध्यान योगा है, इसका एक और लेवल अप, उसमें हमें परमात्मा की रियलाइजेशन होती है, मतलब ब्रह्म की रियलाइजेशन से थोड़ा दूसरा कि देयर इज अ सुपर सोल। और लेकिन जो भक्ति योग से है, उसे हमें सुप्रीम पर्सनालिटी एज इट इज, जो कृष्ण है, उनका मतलब वो उनके बारे में पता चलता है। तो उसमें हम्म स्टेप्स देख सकते हैं हम कि एक थोड़ा है पर पूरा कंप्लीट नहीं है, फिर उससे ऊपर एक स्टेप बढ़ के है, और जो थर्ड है वो कंप्लीट है, भक्ति योगा जिसे हम कहते हैं, द टॉप मोस्ट योगा सिस्टम। आकृति तो बहुत पढ़ रही है भाई। ओके। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी। एनीवे, थैंक यू आकृति। हाँ, यस। और कोई यहाँ पर पिक्चर में क्या दिख रहा है इससे कुछ? व्हाट इज इट, व्हाट इज द कंक्लूजन, और लाइक कमेंट्स, आई नीड कमेंट्स। क्या दिख रहा है, मतलब क्या कुछ समझ में आ रहा है क्या? और कोई? आरुषि, अंशिका, अर्पिता, प्लीज पिकअप। चारू, धवनी, शशि, प्रिया, प्रिया सिंह। नोबडी वुड लाइक टू स्पीक? ओके, इसलिए ऑफलाइन, ऑनलाइन। एनीवे। प्रभु जी, मैं बताना चाहूंगी। यस। मेरे अकॉर्डिंग इस पिक्चर में जैसा दिखाया जा रहा है, योगा लैडर जैसे ऊपर लिखा है, ये हमारी एक मतलब जैसे हर एक चीज की एक स्टेज होती है, वैसे ही सबसे नीचे वाली स्टेज हमारी बताई गई है यहाँ पे, ब्राह्मण रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की सीढ़ी है। भक्ति योग सबसे टॉप पे है, क्योंकि वहां जाने के लिए हमें नीचे वाली सीढ़ियों को भी पार करना पड़ेगा, हर एक स्टेज को एक लेवल पे चढ़ना पड़ेगा। रियलाइजेशन से पहले जैसे ब्राह्मण रियलाइजेशन है, उसके बाद परमात्मा रियलाइजेशन है, देन वी विल गेट भगवान रियलाइजेशन, जैसा मुझे इस पिक्चर में नजर आ रहा है, ये वो है। थैंक यू धवनी। यस, यस, जस्ट लाइक शी वाज मेंशनिंग, वन, मतलब क्या दिख रहा है यहाँ पर? भक्ति योगा टॉप में है, दिख रहा है, और ज्ञान योगा नीचे है, दिख रहा है, और सीढ़ी दिख रहा है। तो एक्चुअली श्रीमद् भागवतम एंड इवन इन भगवद गीता एज वेल, खास करके श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन आता है। तो भगवान को जो समझने के लिए कोशिश कर रहा है, और योग पद्धति जो फॉलो कर रहा है, खास करके वो हम्म, वो भगवान को 3 तरीके से समझते हैं। ओके, प्रोग्रेसिवली दे अंडरस्टैंड गॉड इन 3 different ways
यू कैन से। ये जो ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा, हम लोग अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में क्या है। ये 3 अलग अलग योग पद्धतियां हैं जिससे भगवान से जोड़ सकते हैं। एंड ये 3 जो वेस है, जस्ट लाइक भगवान के पास, सपोज आई थिंक आई हैव गिवन दिस एग्जांपल, अभी मेरे दिमाग में आया। सपोज यहाँ से हमें दिल्ली, शायद सपोज मान लो बेंगलोर जाना है। बेंगलोर जाने के लिए कैसे कैसे जा सकते हैं बताइए? आई हैव टू गो टू बेंगलोर फ्रॉम हियर, व्हाट आर द डिफरेंट वेज आई कैन गो? ये तो प्रभु सिंपल जी, प्रश्न है भाई। रोडवेज भी है, ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है। सबसे इजीएस्ट मतलब फ्लाइट वाला है, आप 2 ढाई घंटे में पहुंच जाओगे। फ्लाइट है, और कोई बताएंगे? और कोई उपाय है क्या? ट्रेन है, फ्लाइट है, और क्या उपाय है? पैदल भी जा सकते हैं प्रभु जी। पैदल भी जा सकते हैं, बिल्कुल। और कोई अदर्स? बेसिकली यही तरीके हैं, पैदल जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं। इन द सेम वे, दिस इज एन एनालॉजी। तो भगवान के पास जाने के लिए भी ना अलग अलग तरीके हैं, यू कैन अंडरस्टैंड इट इन दैट वे, ओके। एंड सबसे फास्टेस्ट जो कहते हैं, फास्टेस्ट एंड इजिएस्ट कंपैरेटिवली, वो भक्ति योग से भगवान के पास या भगवान को पाना। वो कैसे है? I'll give you examples to understand this concept. Let me go forward. This is the shloka. Can you repeat after me? You can unmute yourself and कृपया मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। श्योर प्रभु जी। Okay. वदन्ति तत्तत्त्वविदः, वदन्ति वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्तत्त्वविदः, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, वदन्ति तत्तत्त्वविदः, तत्त्वं यज्ज्ञानम् अव्ययम्, तत्त्वं यज्ञानमभयम्, तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, तत्त्वं यज्ञानमद्वयम्, ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति, ब्रह्मेति परमात्मेति, परमात्मेति, भगवानिति शब्दते, भगवानिति शब्दते, भगवानिति शब्दते। भगवानिति शब्दते। Can somebody read the translation? हाँ, कोई ट्रांसलेशन पढ़ेंगे? आई वांट पार्टिसिपेशन। अभी तो वैभव, आकृति एंड अमन के अलावा कोई बात किया नहीं। Who else spoke? Dhavani spoke. Yes, some new person. I want them to read the translation. इतना तो पढ़ ले. Let me take somebody's name who are there in my list. Arushi, can you read the translation? Can you unmute? आरुषि, अनम्यूट कर सकते हैं आरुषि? या अंशिका कैन अनम्यूट एंड रीड द ट्रांसलेशन? यस अंशिका, गो अहेड। Learn to translate this food of absolute truth. Call this non-dual substance Brahman, Paramatma or Bhagwan. Okay, thank you. So, वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वं यज् ज्ञानम् अद्वयम्। तत्त्वविदः, तत्व means like truth. तत्त्वविदः को यहाँ पर ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा है। तत्वम यज् ज्ञानम अद्वयम, ज्ञानम जो who knows, right? Those learned transcendentalists, तत्वम यज् ज्ञानम अव्ययम, जो जानते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ या भगवान को, वो कहते हैं
हम 3 तरीके से भगवान को समझ सकते हैं। वो है ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। ये क्या है थोड़ा सा आगे हम चर्चा करेंगे। बेसिकली ब्रह्मन, ये जो ज्ञान योग का पद्धति फॉलो करते हैं भगवान को समझने के लिए, ये समझते हैं भगवान को एक ज्योति के रूप में, राइट। इनका अल्टीमेट गोल होता है भगवान निराकार ब्रह्म है, निर्गुण है, मतलब इनका कुछ कोई क्वालिटीज नहीं होता है, भगवान एक लाइट है। ओके, बस उतना ही उनका अंडरस्टैंड, मतलब विद दिस गोल दे गो अहेड और उस लाइट से मर्ज होना चाहते हैं। ओके, और परमात्मा मतलब भगवान, भगवान को ना परमात्मा समझते हैं, तो हर एक के हृदय में भगवान है। ये जो रियलाइज करना चाहते हैं वो ध्यान योग पद्धति जो फॉलो करते हैं, वो भगवान को हर एक के हृदय में सुपर सोल या परमात्मा के रूप में समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। एंड भक्ति योग पद्धति में भगवान को एक व्यक्ति, बट दिव्य व्यक्ति के रूप में समझते हैं और भक्ति का प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एंड अल्टीमेटली फॉर दोज हु फॉलो भक्ति योगा, गॉड इज ए पर्सन, गॉड इज अ ट्रांसेंडेंटल पर्सन। इसका थोड़ा सा और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके ओके, क्या दिखाई दे रहा है? एनीबॉडी? डिफरेंट लेवल ऑफ कृष्णा रियलाइजेशन। हाँ वो ठीक है रे, उसके बगल में फोटो से पहाड़। पहाड़। और कोई जी क्या दिखाई दे रहा है? एनीबॉडी एल्स? पहाड़ दिखाई दे रहा है। अर्पिता, I have to take names because yes. आरुषि बात करना चाह रही है? या अमन, अमन बोलना चाह रहा है कुछ? जी प्रभु जी, मेरा माइक ऑन था एक्चुअली। ओके ओके, एनीवे या इस फोटो में प्रभु जी यही कि क्या क्या दिख रहा है, राइट? तो एक प्रभु जी एक पहाड़ है हाँ पहाड़ ही दिख रहा है और बेसिकली। और प्रभु जी हाँ एक जी। लाइट भी दिख रही है कि मतलब जैसे सूर्य की रोशनी है जो नीचे वाला, अगर हम मेन पिक्चर बड़ा वाला पिक्चर की बात करें बैकग्राउंड, एक Exactly. लाइट है। A हाँ लाइट। bright light, a लाइट भी दिख positive रहा है। vibe. यस, एक्चुअली ये पहाड़ है, एक्चुअली हमारे तो पास में ही पहाड़ है। दूर से जब देखते हैं पहाड़ ऑल्सो लाइक इट सीम्स सिमिलर टू द स्काई। इजंट इट, लाइक इज इट ट्रू? मतलब स्काई से ना मतलब मिला जुला लगता है, मतलब कुछ अंतर समझ में नहीं आता। कुछ है, कुछ शेप है लगता है, बस उतना ही, राइट। हाँ बट बादल से कवर रहता है। बादल से कवर रहता है, बादल ही लगता है दूर से। थोड़ा पास जाते हैं, अरे देयर इज सम डिफरेंस, अंतर भी है ऐसे दिखता है, राइट। और थोड़ा सा पास जाते हैं, हमको क्या दिखने लगता है? भाई पहाड़ के ऊपर भी कुछ कुछ है। जैसे मुझे याद है जब बद्रीनाथ गए थे हम लोग, तो इवन बहुत ऊंचे पहाड़ है, वहां पर भी ना मतलब देर आर खेती हो रहा है, गांव बसे हैं। ये दूर से तो नहीं दिखता, राइट। और थोड़ा पास जाते हैं जी प्रभु जी। तब यू कैन सी, यू कैन हैव अ बेटर पिक्चर। खेती हो रहा है, घर है, ये सब दिखाई देता है। और थोड़ा पास जाते हैं, मतलब इसके अंदर जाते हैं, राइट। जैसे जैसे मैं बताया, देर आर मेनी टाउन्स, गांव बसे हैं, लोग रहते हैं, पशु पक्षी हैं, राइट। So in the same way,
Yeah, somebody can read. Those who have not read, अभी बोल ही नहीं रहे, वो लोग पढ़ सकते हैं. मैं नाम लूं या you will come out? Who can somebody read the translation? A सत्यम. single Yes. object अरे कौन is बोल a रहे हैं? खुशी. Okay. खुशी तुम ऊपर वाला पढ़ लेना, फिर सत्यम will read the down one. Okay. okay. A single object is appreciated differently by different senses due to its having different qualities. Similarly, the Supreme Personality of Godhead is one, but according to different scriptural injunctions, he appears to be different. हाँ, अरे what does it mean? According to different भगवान एक है, बट अलग अलग स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस के हिसाब से अलग अलग दिखता है, दिखाई देता है. जस्ट लाइक यहाँ पर हम बहुत दूर से देखा वो पहाड़ है, थोड़ा सा और अंदर गया, केवल नॉट जस्ट लाइक रॉक्स इन इट, उसमें गांव बसे हैं. एंड और थोड़ा सा अंदर गया, देयर आर रियल पीपल लिविंग इनसाइड, देयर आर एनिमल्स लिविंग इनसाइड, राइट. और एक example say I'll give, then you will understand more nicely. Satyam can read this. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Satyam. Yes. A hill appears cloudy from a distance, and one who does not know may speculate that the hill is a cloud. Actually, it is not a cloud. It is a big hill. One has to learn from authority that the sight of a cloud is not actually a cloud, but a hill. If one makes a little more progress, then instead of a cloud, he sees the hill and something green. When one actually approaches the hill, he will see many varieties. Yeah. Satyam, can you explain, like, ये तो simple English है, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? यहाँ की जो हिल है वो डिस्टेंस से थोड़ा क्लाउडी दिखता है, मींस उसको दूर से ऐसे ही कह सकते हैं कि हाँ शायद ये क्लाउड ही है, बट जैसे जैसे हम उसके पास जाते हैं तो वो कुछ और ही फिगर में चेंज होने लगता है. मींस हमें ऐसा पता लगने लगता है कि वो एक्चुअल में क्लाउड ना होके एक हिल है. तो वहां से पास जाने पर और थोड़े पास जाने पर जब वो देखता है कि वहां पे कुछ ग्रीन ग्रास भी है, एंड एक्चुअल में थोड़ा और पास पहुंच जाता है तो वहां और वेराइटीज भी देखता है कि लाइक अभी आपने बोला कि वहां पे विलेजेस हैं, पीपल हैं, तो ये सब भी उसको हिल के जैसे जैसे पास जाने पर ये डिफरेंट रियलाइजेशंस होते हैं. Okay, thank you Satyam. Yeah, so this is that, just like I think I have given this example. Train example, have I given this example? Train na? Yeah, I think yeah, some of you know. ट्रेन को बहुत दूर से जब देखते हैं, ट्रेन इज कमिंग, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी? ट्रेन आ रहा है, कैसे समझ में आता है? आप प्लेटफॉर्म में खड़े हो, दूर से देखेंगे, यू आर वेटिंग फॉर द ट्रेन, कैसे समझ में आता है ट्रेन आ रहा है या नहीं आ रहा है? प्रभु जी, सामने से बहुत तेज कुछ डब्बे जाते हैं. ट्रेन आ रहा है, आप ओके, लेट्स मी पुट इट. मतलब पहले तो साउंड आता है बहुत तेज सा, साउंड आता है. और कोई इज देयर एनी अदर वे टू, मतलब प्रभु जी फाटक बंद हो जाते हैं, क्रॉस करने वाले. फाटक लाइट ओके, लाइट इज आल्सो वन वे, राइट? मतलब बहुत दूर से, ठीक है, सुबह तो लाइट की जरूरत नहीं है, बट एनीवे लाइट या साउंड दूर से ही पता चल जाता है ट्रेन आ रहा है. अगर वो ही देख के, जस्ट लाइक हमने उदाहरण दिया था, दो व्यक्ति थे, ट्रेन के स्टेशन में गए, गांव से आए, और वो ट्रेन के लिए वेट कर रहा है, और 3 व्यक्ति है. ओके, एक ने दूर से देखा, उनको ना लाइट दिखा, लाइट देख के वो गांव गया और बताने लगा मैंने ट्रेन को देख लिया, ट्रेन लाइट है, मेरे को समझ में आ गया, बस यही है ट्रेन, राइट? और दूसरा एक व्यक्ति है, वो ट्रेन थोड़ा और नजदीक होते देखा और बताया भाई ट्रेन मतलब ना पेटी है, पेटी होता है, एक के पीछे एक पेटी होता है, ऐसे लंबा, बहुत लंबा होता है, बस ये ट्रेन है, राइट?
और तीसरा व्यक्ति है, वो ना ट्रेन जब आके रुका प्लेटफॉर्म में, तब तक ही वाज वेटिंग देयर। देन वो देखा भाई पेटी है, पेटी के अंदर लोग भी है और लोग अपना अपना काम कर रहा है, कोई सो रहा है, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई खा रहा है, राइट। तो इन तीनों में से व्हाट इज द बेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेन? किसका अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है? कौन ट्रेन को बहुत अच्छे से समझा? पहला, थर्ड वाला। दूसरा, तीसरा, थर्ड वाला, right? हम्म। So in the same way, this is also an analogy which is given in our Shastra, Srimad Bhagavatam. Okay? In the same way, जो भक्ति योग से भगवान को जानना चाहते हैं, he understands God in his ultimate form, ऐसा कहते हैं. Just like I think this example also I have given. दूध दिखने में कैसा दिखने में कैसा लगता है? कैसे दिखता है दूध? एनीबॉडी? व्हाइट इन कलर। हाँ, सब तो दूध पिया ही होगा। व्हाइट इन कलर, राइट। दूध को दूर से ना कोई देख रहा है, राइट, और कोई दूध को सूंघ रहा है, और कोई दूध को पी रहा है। Who enjoys? Who is who is enjoying milk in a better way? The one who is drinking, One who having the is, जो taste. पी रहे हैं। हाँ, अरे दवनी कुछ बोल रही है। One who is drinking the milk. हम्म। जो पी रहा है, he can enjoy the milk more nicely, right? जो चू रहा है, maybe he feels soft, but जो देख रहा है, white दिख रहा है, but ultimately, who is drinking the milk, he is enjoying more. So this is also one of the examples which is given, समझाने के लिए कि भगवान को जो समझते हैं एक दिव्य व्यक्ति है, एंड वो अपने भक्तों के साथ ही परफॉर्म्स पास्ट टाइम्स, एंड उनके साथ संबंध रीएस्टैब्लिश करने के लिए जो कोशिश करता है, भक्ति मार्ग से जो उनको पाने के लिए कोशिश करता है, ही इज, कहते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, ही इज द बेस्ट ऑफ द योगीज। कहते हैं योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मता। आगे देखेंगे हम। दिस इज द कंक्लूजन दैट इज गिवन इन द शास्त्र। ओके, सो ऐसे ही जस्ट लाइक दिस 3 एग्जांपल्स आर गिवन टू टेल यू द सेम फैक्ट। ज्ञान, ध्यान, भक्ति, जो ज्ञान योग में है ना, वो भगवान को ज्यादा ही थोड़ा दूर से ही देखने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे हम लोग दूर से पहाड़ को देखे, मे बी इट्स जस्ट रॉक्स, लाइक दैट वी डिसाइड। तो ज्ञान योगी समझते हैं भगवान को एक निर्गुण ज्योति है, राइट। और जो ध्यान योगी है वो थोड़ा सा और आगे जाता है, केवल भगवान लाइट नहीं है, भगवान हर एक के हृदय में है, राइट। और भगवान, भक्ति योगी जो है वो समझते हैं भगवान केवल हृदय में ही नहीं, बल्कि उनका स्वयं अपना धाम है, और वहां पर उनके भक्त के साथ हमेशा वो लीलाएं करते रहते हैं, राइट। इसका ये अंडरस्टैंडिंग होता है। लेट मी गो फॉरवर्ड। ओके, so this is a beautiful depiction. I would like you to comment. यहाँ पर इससे क्या समझ में आ रहा है? I think I have shown it before. Yes. यहाँ पर क्या हो क्या रहा है? राइट वाले जो पिक्चर है, बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहा है, फिर बच्चे हैं, कुछ देख रहा है। सर्कल ऑफ लाइफ एंड डेथ। हम लाइफ जन्म एंड डेथ, लेते होते हैं, जन्म लेते हैं, मृत्यु। ओके। लेकिन अरे रुक बीच जा, में रुक जा, हम लोग रुक जा, रुक जा। I want others also to participate. Yes, Akriti is ready to, yeah. Others, Charu, you want to speak? दिशा, एनीबडी? बस क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? वो शशि, सत्यम, वृंदा,
आई वांट योर ओपिनियन, हो क्या रहा है यहाँ पर? क्या समझ में आ रहा है इससे? नो कमेंट्स? अरे कुछ तो बोलो। ओके आकृति, आई थिंक यू ओनली हैव टू स्पीक। हाँ यस। जी। तो हम लोग अगर स्टार्टिंग पॉइंट देखें तो पहले हम देखते हैं कि लाइक जैसे बच्चा पैदा होता है, बड़ा हुआ, फिर से मृत्यु हुई, तो मतलब वो सर्कल कंटिन्यू। लेकिन हम देखते हैं कि बीच में एक इंसान इग्नोर करता है कि बगल में कोई गुरु है, अपने बच्चों को कुछ बता रहे हैं, हम उस चीज को इग्नोर करते हैं, हम फिर से उसी साइकिल में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं थर्ड टाइम पे उस बच्चे ने बड़े होकर एक शिक्षा ली गुरु से, तो मतलब द गुरु, और उसके बाद हम देखते हैं वो मृत्यु के बाद उन्होंने फिर से बर्थ नहीं लिया, बट ही मेट द मतलब ही मेट कृष्णा। तो इसमें हमें ये समझ आ रहा है कि जब तक हम मतलब ये बर्थ एंड डेथ का चलता आ रहा है, लेकिन अगर हम एक जीवन में किसी मतलब प्रमाणित गुरु के द्वारा उनसे उनके अंडर रह के अगर हम भक्ति योग करते हैं, तो हम लोग कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस बंधन से, ये जो साइकिल है, इससे हट के अलग कृष्ण के पास जा सकते हैं, जो हमारा लाइक अल्टीमेट मतलब घर है कृष्ण के पास। तो ओके, कोई एनीबॉडी एल्स? थैंक यू आकृति। सत्यम, यस। ये इमेज सत्यम, देन गुरु आर्या। की ओके सर। गुरु की इम्पोर्टेंस को डिपिक्ट कर रही है, मे बी। गुरु की इंपॉर्टेंस को डिस्कस कर रहे हैं। यस, थैंक यू सत्यम। हु एल्स? आर्या। आर्या? यस सर। यस। सर दिस इज द पिक्चर, लाइक जो एक ह्यूमन बीइंग होता है, प्रभु जी like मुझे भी कैसे बोलना। ठीक है, यस। आर्या, देन वो कैसे बर्थ लेता है, कैसे एक छोटी सी भी चीज अगर हम उठते हैं सुबह, ब्रश करते हैं, उसमें भी एक भगवान की ना वो एक कुछ क्वालिटीज जो होती है ना वो छुपी रहती हैं। भले ही हम पूजा करते हैं, पूजा नहीं करते हैं, तो इसी में ये जो पूरी साइकिल है ना, ये दिखा रहे हैं कि हाउ द थिंग्स ऑलरेडी वर्क। ये यूनिवर्स में कैसी चीजें होती हैं बाय द गुरु, और गुरु जो है वो एक गाइडेंस होता है। लाइक बहुत से लोग हैं काफी गुरु को मानते हैं, इंस्पायर होते हैं। रिसेंटली विराट एंड अनुष्का हैज वेंट देयर टू सीक द ब्लेसिंग्स ऑफ द गुरु। ये लोग भी एक भगवान की बुक पढ़ सकते हैं, रामायण, लेकिन जो एक गुरु है वो गाइडेंस जो देता है, तो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती, प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में होती है, बट वो इजीली सॉल्व होती चली जाती हैं थ्रू दी। तो उसी में इस साइकिल में ये दिखाते हैं कि हाउ द बर्थ हैज टेक प्लेस। फिर हम अपनी एक मिडिल एज में आ जाते हैं, जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हालांकि हमको तब भी जरूरत होती है जब हम एक क्रॉल करना सीखते हैं। इवन जो रामचंद्र जी भी थे, उनको वो भी बचपन में एक गुरु से सीखने गए थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके भी मम्मी पापा ने उनको भेजा था, उसके बाद वो पहले सीख के फिर आए थे। जब तो द गुरु इज वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर एवरीबडी, इवन फॉर गॉड ऑल्सो। Okay. Thank you, sir. Guru, one thing everybody is telling is, rightly observing is Guru. Akriti want to speak? Yes. हाँ, एक चीज और, मैं जो पिछली बारी में शायद मेरे से छूट गया, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे बगल में कंटेक्स्ट भी अगर उसको भी नोटिस किया मैंने, हाँ, तो रुक जाओ ज्ञान यार, योग रुक जाओ। Wait, जी wait. Dhavani wanted to speak. Dhavani wanted to जी speak? प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं कहना चाह रही थी कि अकॉर्डिंग टू मी इस पिक्चर में क्या है कि मतलब जब हम बर्थ लेते हैं, हम इस दुनिया से बिल्कुल अनजान है, हमें किसी चीज का कुछ पता नहीं होता। हमारे पेरेंट्स हैज हमें गाइड करते हैं, लेकिन जितने इम्पोर्टेंस गुरु की होती है, गुरु क्या होता है, गुरु सिर्फ हमें गाइड नहीं करते हैं, गुरु हमारे भगवान तक पहुंचने का एक मार्ग होता है, बल्कि वो खुद वो मार्ग बन जाते हैं ताकि वो हमें भगवान तक पहुंचा सके। तो वो इसमें इस पिक्चर अकॉर्डिंग टू मी बताया जा रहा है कि आप छोटे हो, मिडिल एज में हो या ओल्ड एज में हो, चाहे कुछ भी हो जाए, गुरु की इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वही आपका पाथ है। आपकी डेस्टिनेशन जो है वो गॉड है, वो कृष्णा है, लेकिन जो आपका पाथ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल एक प्योर पाथ होना चाहिए। दैट इज व्हाट कि हमें एक गुरु में मिलता है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है गुरु की, ये यहाँ पे बताई जा रही है। Okay. Thank you, Dhavani. Lunesh, yes, thank you.
for raising your hand. I'm very happy. Finally, yes. Yes, Lunesh. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बता हाँ लुनेश। जी प्रभु जी, इसमें 3 लाइफ साइकिल दिखाई गई है कि पहले बर्थ होता है, फिर डेथ होती है, फिर सेकंड लाइफ में वो गुरु शिष्य को मतलब साथ में देखता है, और थर्ड लाइफ में वो ज्ञान को लेके कृष्णा जी के पास पहुंचता है। तो मतलब एट द एंड ज्ञान से वो भक्ति के मार्ग से कृष्णा जी के पास पहुंचा है। वाओ, थैंक यू वेरी मच। या यस, या सब लोग देख पा रहे हैं 3 लाइफ साइकिल्स आर देयर। जैसे पहले यू कैन सी जन्म लिया, तो पढ़ाई करा, ज्ञान अर्जन कर रहा है एक तरीके से, एंड या लाइक ही हैज पास्ड अवे, अगेन ही टुक बर्थ, एंड इन दिस लाइफ बिकॉज उन्होंने ज्ञान अर्जन किया था पिछले जीवन में, वो समहाउ मतलब इम्प्रेशंस तो रहता ही है। ज्ञान अगर भगवान के बारे में ज्ञान अगर अर्जन करते हैं, दैट विल बी कैरी टू योर नेक्स्ट लाइफ। ओके, सो दूसरे जीवन में आप देख सकते हैं, कृपावश वो भक्तों के संग में आ गया। देखा कोई कुछ भक्त लोग है, वो कुछ सुन रहे हैं भगवान के बारे में, he has seen them, and but anyway this life also उनका खत्म हो गया। then he again has taken birth, then इस बार he met devotee and he is taking instructions from devotee, and in this way finally he could attain God. Just like many of you told, one thing is गुरु की इम्पोर्टेंस। गुरु हर जगह पर हमें गाइड करते हैं। गाइडेंस इज नीडेड इन आवर लाइफ, बी इट मटेरियल लाइफ, भौतिक दुनिया क्यों ना हो या आध्यात्मिक दुनिया क्यों ना हो। जस्ट लाइक तुम सब लोग पढ़ाई कर रहे हो, राइट, गुरु के पास तो जाते ही है, राइट। आध्यात्मिक गुरु तो नहीं है, बट एटलीस्ट मटेरियल गुरु तो है, गुरु का शरण तो लेना ही पड़ता है, राइट। इन द सेम वे आध्यात्मिक जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए प्रामाणिक गुरु की बहुत आवश्यकता होती है। एक्चुअली यहाँ पर खास करके ना, जस्ट लाइक एज दिस हेडिंग यू कैन से, ज्ञान योगा एलिवेट टू भक्ति। एक्चुअली भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक है। दिस इज द श्लोका। कैन यू रिपीट आफ्टर मी? कैन यू रिसाइट आफ्टर मी? देन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिसाइट आफ्टर मी। बहूनां जन्मनामन्ते बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः महात्मा सुदुर्लभः समहात्मा सुदुर्लभः। समहात्मा सुदुर्लभः। थैंक यू। कह रहे हैं बहूनाम जन्मनामन्ते, अनेक अनेक जन्मों के बाद, जन्म नाम अंते, बहुत बार बहुत जन्म लेने के बाद, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, ज्ञानी व्यक्ति माम प्रपद्यते। यहाँ पर माम रेफर करते हैं भगवान को, क्योंकि भगवान स्वयं अर्जुन से कह रहे हैं माम प्रपद्यते, ही विल कम टू मी। वासुदेव सर्वमिति, द अंडरस्टैंडिंग दैट आई एम एवरीथिंग। वासुदेव कौन है? जो वसुदेव के पुत्र है, जो कि कृष्ण है। स महात्मा सुदुर्लभ, ऐसे जो महान आत्माएं हैं बहुत ही रेयर है। एक्चुअली कॉन्टेक्स्ट है ज्ञान योगी के बारे में बताते हुए, तो ज्ञान मार्ग से भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं। बेसिकली ज्ञान मार्ग में ना 2-3 चीजें हैं। ज्ञान मार्ग मतलब नॉलेज, ज्ञान से भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं अपने दम पे, एंड
उनका प्रोसेस होता है नैति नैति यू लाइक क्या मतलब है उसका? वो समझता है आई एम नॉट दिस, जस्ट लाइक आई एम नॉट माई बॉडी, आई एम नॉट माई माइंड, आई एम नॉट माई इंटेलिजेंस। ये सब उन्होंने किताबें, शास्त्र, उपनिषदें, ये सब पढ़ के, खास करके उपनिषद, राइट, रीडिंग उपनिषद्स, he tries to understand that he is not this body, mind, intelligence. He's beyond all these things, and in this way he tries to understand God. इसको speculative process, speculative knowledge के माध्यम से वो भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं, अपने दम से ऐसा बताते हैं। तो उनका क्या गति होती है यहाँ पर बताया जा रहा है। उनको भी ना अंत में भगवान के शरण या भक्ति योग, भक्ति मार्ग की शरण लेना ही पड़ता है, तो भक्तों का संग लेना ही पड़ता है, ये यहाँ पर कह रहा है। I'd like somebody to read the translation, जो नहीं पढ़ा है, या anybody would like to volunteer, just read the translation. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Yeah, what does that mean, अर्पिता? क्या बता रहा है? आप क्या समझ में आ रहा है? After many And हाँ, बस तुमको क्या समझ में आ रहा है, बस उतना बताना है। नो प्रेशर। यस, मतलब जो मतलब इन क्या बोलते हैं, जन्म और मृत्यु के बाद जो जिसके पास मतलब सच में नॉलेज होती है, वो मुझे सरेंडर करता है अपने आप को। ये उसको ये पता होता है कि मतलब क्या बोलते हैं, हर चीज में ही हूँ, मतलब हर चीज का कॉज में हूँ, और ऐसे सोल बहुत रेयर होते हैं। हाँ, ये भगवान कह रहे हैं बेसिकली। ओके ना, थैंक यू। So who understands that I am everything and surrenders to me is very rare. Okay. So actually this is one more shloka. You can just recite with me. यहाँ पर बस जिक्र मतलब जस्ट ज्ञान ध्यान और भक्ति का कर्म ज्ञान ध्यान, उसका ना there is a reference in Bhakti Yoga, Bhagavad Gita. That's all. Can you repeat after me? ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ज्ञानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, केचिदात्मानमात्मना, 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 अन्ये सांख्येन योगेन, अन्ये सांख्येन योगेन, अन्ये सांख्येन योगेन, अन्ये सांख्येन योगेन, कर्मयोगेन चापरे, कर्मयोगेन चापरे, कर्मयोगेन चापरे। कर्मयोगेन चापरे। या थैंक यू। मुझे यहाँ पर यही बता रहा है, जैसे हम लोग डिस्कस किया था, कुछ लोग ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति, ध्यान मार्ग से भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं। कुछ लोग अन्य सांख्य योगेन, सांख्य योगा का मतलब है जो ज्ञान पद्धति से भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं। और लास्ट लाइन में कहा है कर्मयोगेन चापरे, अपरे, और कोई कर्मयोग के माध्यम से भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं। या दिस इज अनदर रेफरेंस फ्रॉम भगवद गीता। प्लीज रिसाइट आफ्टर मी। तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्विभ्यो अधिको योगी,
ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः ज्ञानेभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन तस्माद् योगी भवार्जुन। ये बेसिकली जो हम लोग लैडर देखे थे उसी लैडर को भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। तपस्विभ्यो अधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। बेसिकली योगी यहाँ पर ना ध्यान योगी को रेफर करता है। जो ध्यान योगी है वो जो तपस्या करते हैं या ज्ञान योग का फॉलो करते हैं, ज्ञान मार्ग से भगवान को समझने के लिए कोशिश करते हैं, उससे भी अधिक है। और वो जो कर्म के माध्यम से भगवान को समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं उससे भी अधिक है। तो हे अर्जुन, योगी भवा, बिकम अ योगी। ओके, जस्ट यहाँ पर तो ध्यान योगी, ज्ञान योगी और कर्म योगी से ऊंचा है कह रहे हैं। और आई विल कम बैक टू दिस। भगवान आगे कहते हैं बट भक्ति योगा इज द टॉप मोस्ट। ओके, जस्ट आई विल recite the shloka. Please recite after me. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Uvacha. Maya Veshya Mano Ye Mam. Maya Veshya Mano Ye Mam. Why nobody else is able to participate? Can't unmute? Okay, please unmute. जो भी कर सकते हैं थोड़ा unmute कर लें। जो बाहर है क्या ही कर सकते हैं। मय्या वेश्य मनो ये माम। मय्या वेश्य मनो ये माम्। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्। श्रद्धया परयोपेतास्। श्रद्धया परयोपेतास्। श्रद्धया परयोपेतास्। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ते मे युक्ततमा मताः। ओके, ट्रांसलेशन कोई पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन शिवम। The Supreme Personality of Godhead said, "Those who fix their mind on my personal form and are always engaged in worshipping me with great and transcendental faith are considered by me to be most perfect." Hare Krishna. हरे कृष्ण। एक्चुअली ये 12वें अध्याय का नाम है डिवोशनल सर्विस या भक्ति योगा। उसमें भगवान साफ साफ बताते हैं कि जो भक्ति के मार्ग से ना भगवान को पाना बहुत इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी नेचुरल एंड इट इज वेरी हैप्पी प्रोसेस। और भगवान को एक व्यक्ति के रूप में, एक दिव्य व्यक्ति के रूप में जो पूजते हैं वो उनको प्रिय है। जस्ट लाइक कल ना अमन, हमारे वैभव, योगी एंड वन ऑफ योगीज फ्रेंड्स, आई थिंक दे हैव कम हियर। यहाँ पर इस्कॉन में ना कल बहुत अच्छा सेलिब्रेशन था, नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस दिया था, सो वी वर सेलिब्रेटिंग इट वेरी नाइसली। तो
एंड यहाँ पर रुके हैं रात को, एंड सुबह सुबह उठा, मंगल आरती अटेंड किया, प्रसाद पाया, प्रसाद बनाया. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा. भक्ति योगा में ना मतलब हम एंगेज हो जाते हैं पहले से ही भगवान की सेवा में. जैसे उठते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान के लिए कुछ बनाते हैं. एंड इन कॉन्ट्रास्ट ज्ञान योगा हम लोग समझने के लिए कोशिश कर रहा है, निराकार ब्रह्मन मतलब लाइट. लाइट को लाइट से रिलेशनशिप फॉर्म करना या एक व्यक्ति से रिलेशनशिप फॉर्म करना कौन सा आसान है? एक कैन यू एस्टैब्लिश a relationship with light? Anybody? हरे कृष्ण. पर्सन से करना आसान है, पर्सन लाइट से आसान है. सी जस्ट लाइक सिंपल एग्जांपल लेट मी गिव. अभी ऑनलाइन में ना क्लास चल रहा है, इट इज वेरी इम्पर्सनल. कुछ मजा नहीं आता. आई एम नॉट एबल टू सी एनीबडी. आई एम नॉट एबल टू see your faces, what is happening with you. I'm not able to बात ही नहीं कर पा रहा हूँ बेसिकली. बहुत इम्पर्सनल है. क्या समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, यू वांट टू लिसन, यू डोंट वांट टू लिसन, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, राइट? सो दिस इज far more difficult to take class like this. So simple. In the same way, impersonal मतलब पर्सनल रूप भगवान का ये जो भक्ति प्रोसेस है ना, बहुत आसान प्रोसेस है. यू कैन वैभव आया था, ही एंजॉयड अ लॉट. आई थिंक अमन आल्सो एंजॉयड अ लॉट. पता नहीं, योगी तो पहले चला गया. जी प्रभु जी. हाँ. So comparatively, compared to bhakti process, which is like very simple also. ज्ञान योगा मतलब पढ़ना है, जो लाइट है उसको समझना है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है. जस्ट लाइक यहाँ पर मेंशन किया है, कहते हैं क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर दुःखम देहवद्भ्यवाप्यते. For those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in that discipline is always difficult for those who are embodied. जैसे हम सब लोगों को जो अव्यक्त, जो अभी मैनिफेस्ट नहीं हुआ है, उनको अव्यक्त और इम्पर्सनल फीचर है भगवान के, उसको समझना उतना आसान नहीं है. सिंपल तरीके है, भाई भक्ति करो, ऐसे भगवान कह रहा है. So this is like I think last slide. Okay, we'll just recite this and after this we'll have a short quiz. तो कहते हैं, भगवान कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां. You can recite after me. You can unmute yourselves. योगिनामपि सर्वेषां योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्तः तमो मता समे युक्ततमो मता कह रहे योगिनाम अपि सर्वेषाम, among all the yogis, madgatena antaratmana, madgatena antaratmana, who worships me as his life and soul, श्रद्धावान भजते यो माम, and who जो भजन करते हैं भगवान के श्रद्धा से, he is more dear to me, ऐसे कह रहे हैं. I would like somebody to read the translation. Shivam Prabhu has already read. I would like somebody else to read. जो नहीं पढ़ा है, this is like last translation. थोड़ा सा पढ़ ले. नेहा, yes. Okay. And of all yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself,
and renders transcendental loving service to me. He is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. Thank you, Neha. So Krishna is telling, those who render transcendental loving service to me, he is most intimately united with me in yoga. And it is very easy also compared to समझने के लिए कोशिश कर रहा है बुक पढ़ के, या उपनिषद पढ़ना भी उतना आसान नहीं होता है. You would have to learn the language also. Very difficult compared to the process of bhakti. It's very simple, which is very simply given to us. Cook for Lord. Do something for Lord, basically. भगवान के लिए कुछ बनाएं. जो भी करते हैं भगवान के लिए करें. ये काफी आसान है comparatively. That's what Krishna is telling us here. Let me conclude. Yeah, basically ये श्रील प्रभुपाद जी का परपट है भगवद गीता के 10th chapter, श्लोक संख्या 10. So I would like 3 people to read this and we'll conclude here. Who would like to read? You can raise your hand. Yeah, who's Aman? Aman Prabhu. Yes, Aman, Shivam, Satyam. Yes. एक पढ़ ले. We'll start with Aman. When a person knows the goal of life but is addicted to the fruits of activities, he is acting in karma yoga. हाँ, basically यहाँ पर कर्म ज्ञान ध्यान उसमें हाँ, like what is the difference? प्रभुपाद जी बताने के लिए कोशिश कर रहा है. प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो कर्म योग से भगवान को पाने के लिए कोशिश कर रहा है, उनको ना गोल पता है भगवान को पाना है, परंतु he is very much attached to his work, addicted to his fruitive activities means addicted to his work basically. काम करना उनको बहुत पसंद होता है, तो कोई बात नहीं, अपना काम करो, उसी से भगवान से जोड़ो. ये कर्म योग है, ठीक है ना. और दूसरा शिवम पढ़ेंगे. When he knows that the goal is Krishna, but he takes pleasure in mental speculations to understand Krishna, he is acting in Jnana Yoga. ज्ञान योगा. तो दूसरा ज्ञान योगी है. ज्ञान योगी को भी पता है भाई गोल है भगवान को पाना है, राइट, बट उनको मजा आता है पढ़ना, शास्त्र टू स्पेक्युलेट, शास्त्रों कुछ लोग होते हैं जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन ऑफ माइंड होता है, राइट, लॉजिकली समझना चाहते हैं. जो ज्ञान योगी इज इन दैट कैटेगरी. वो शास्त्र पढ़ के स्पेक्युलेशन, ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, भगवान निर्गुण है इसका मतलब ये हो सकता है, ऐसे समझने के लिए कोशिश करते हैं. तो बेसिकली ये जो ज्ञान योगी है ये अपने इंटेलेक्चुअल बेंड ऑफ माइंड से अटैच्ड होते हैं, ठीक है. सत्यम. And when he knows the goal and seeks Krishna completely in Krishna consciousness and devotional service, he is acting in Bhakti Yoga or Buddhi Yoga, which is complete yoga. This complete yoga is the highest perfectional stage of life. और कह रहे हैं और जो समझते हैं भगवान को पाना है और सेवा करने में लग जाते हैं, सेवा करते हैं, राइट, वो भक्ति योगा या बुद्धि योगा कर रहे हैं. एंड दैट इज लाइक कंप्लीट योगा एंड हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ, ऐसा कह रहे हैं. इसके बीच में ना एक्चुअली ध्यान योगा का थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा था. ये ध्यान योगा भगवद गीता के 6ठे अध्याय में उसका पूरा डिस्क्रिप्शन है. कलयुग में खास करके ज्ञान और ध्यान योग के लिए शास्त्र में बताते हैं वी हैव टू बी सेक्लूडेड. ज्ञान योगा एंड ध्यान योगा उसको सेक्लूजन जरूरत है. ध्यान योग में तो कहते हैं कि आपको ना सब छोड़ छाड़ के जंगल जाना पड़ेगा. यू हैव टू गो
टू secluded place ऐसे बताते हैं. You have to, खास करके to a forest it is recommended, and basically be away from interactions and meditate upon super soul. और कई सारे तरीके बताया हैं कैसे बैठना चाहिए, कहाँ पर बैठना चाहिए, किसके ऊपर ध्यान करना चाहिए, राइट. ये सब बताते हैं ध्यान योग में. और ध्यान योग में ना क्या व्हाट कैन बी अ डिविएशन, कहते हैं ध्यान योग में जब आगे बढ़ते हैं लोगों को ना सिद्धियां मिलने लगता है. पीपल लाइक योगी, उनको ना सिद्धि समझते हैं एक तरीके से ना, पावर, दे गेट पावर, राइट. जैसे एक बार लीला पुरुषोत्तम प्रभु जी वाज शेयरिंग, he met a sadhu or yogi siddhi. He can सपोज यहाँ पर है, वो कहीं दूसरे जगह पर कुछ ऑब्जेक्ट को ना तुरंत लाके तुमको दे सकते हैं. सपोज अफगानिस्तान में कुछ तुमको ना एप्पल चाहिए, या शिमला से एप्पल चाहिए, तुरंत वो यू कैन ब्रिंग एप्पल फ्रॉम देयर एंड गिव इट टू यू हियर. ये एक्चुअली सिद्धि होती है. अष्ट सिद्धि का जिक्र आता है हमारे शास्त्रों में. अनिमा, महिमा, लगिमा, you can become smaller, you can become small, you can become bigger. ऐसा अष्ट सिद्धि है. ये हनुमान चालीसा में है ना? हनुमान अष्ट चालीसा में भी सिद्धि है. नौ निधि के दाता. यस. एंड यहाँ पे ये पॉइंट है कि जो भगवान का ऐसे दास बन जाता है ना, जैसे हनुमान जी थे, तो उनके पास ये सिद्धियां अपने आप आ जाती है, जैसे हनुमान जी के पास थी. यस, थैंक यू. तो ये जो सिद्धियां आ जाते हैं, जो ध्यान मार्ग से भगवान को समझने के लिए कोशिश करता है, बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दे सर्व एज डिस्ट्रैक्शन. वो सिद्धियां पाकर यू गेट डिविएटेड इन द सेंस, और आगे बढ़ा नहीं, वो सिद्धियां से संतुष्ट हो गया. ऐसे बहुत बार शास्त्रों में, श्रीमद् भागवतम में बहुत योगियों का जिक्र आता है. एक मुनि था, सौबारी मुनि. इन्होंने यमुना के नदी के अंदर ये ध्यान करते हैं, कई सालों तक ध्यान करते हैं. वाटर के अंदर, पानी के अंदर ध्यान करते हैं, राइट. ही स्टॉप ब्रीदिंग एंड ही इज डूइंग तपस्या. ऐसे कई साल करते हैं एंड ही अटेन्स लॉट ऑफ सिद्धीज. क्या होता है, एंड वन टाइम ही सीज मेटिंग ऑफ फिशेस. पानी के अंदर जो मछलियां, they are in mating process, and like seeing that he gets disturbed and he comes out, right. And he comes out, and when he comes out, वो देखते हैं वहां पर ना वो जो राज्य के दो राजा है, उनके जो बेटियां हैं वहां पर, they came there maybe to take bath, right. Then he comes there and he runs after them, and ये रानियां भाई इनको देखा, कौन है ये, कहाँ से आया. इनका रूप बहुत विकार था, क्योंकि पानी के अंदर बहुत सालों से तपस्या कर रहे थे, राइट. हिज बॉडी हैज बीन डिफॉर्म्ड, सो दे जस्ट रन अवे. एंड दिस सेंट, ही कम्स टू द किंग्स पैलेस. जो राजा है वो इनको देख के समझ लेते हैं, भाई ही इज सेंटली फेलो, ये तपस्वी लग रहा है, ऋषि लग रहा है. वो उनसे पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, मैं आपको कैसे सेवा करूं. वो कहते हैं, आई वॉन्ट टू मैरी योर डॉटर. राजा इज ऑल्सो टेकन अबैक. राजा सोचते हैं, भाई क्या इनको कैसे क्या करूं, ये जो ऋषि लग रहा है, मैं अगर कहूंगा ये असंभव है, तो ये श्राप दे देगा, तो मैं क्या करूं, कैसे आगे बढ़ूं. तो वो कहते हैं, अगर मेरे बेटियां चाहेंगे तो मेरे को सहमत है, ऐसे कहते हैं, राइट. When this rishi approaches, this says, जैसे अप्रोच भी नहीं किया, जैसे इनकी ओर देखा, वो लोग तुरंत डर रहे हैं बेसिकली उनके फॉर्म को देख के. तो ऋषि समझते हैं, भाई people are getting scared. So using his siddhis, what he does, he changes himself to a very beautiful person, and he expands himself as well. To little extent, ऐसे सिद्धि होते हैं, शायद there is some limit. You can expand yourself into
8 अदर फॉर्म्स, ऐसा कुछ होता है, नॉट अनलिमिटेडली। तो ये बहुत सुंदर व्यक्ति बन जाते हैं और सारे रानियों से शादी कर लेते हैं, इतना सुंदर बन जाता है, एवरीबडी, ऑल द 50 डॉटर्स आई गेस, सभी लोग शादी हो जाता है इनसे। बाद में शादी हो जाता है एंड ही लिव्स अ मैरिड लाइफ, बच्चे हैं, ऐसा आगे बढ़ते हैं। आफ्टर सम इयर्स ऑफ लिविंग अ लाइफ लाइक दिस, ही रियलाइजेस, अरे मैंने क्या कर दिया, मैं तो भगवान के लिए ध्यान कर रहा था, एंड व्हाट हैव आई डन, आई हैव गॉट मैं डिविएट हो गया, मेरा जो सारा सिद्धि है वो खत्म हो गई, मैं भटक गया, बेसिकली रास्ता भटक गया करके। देन ही अगेन लीव्स एंड अगेन ही परस्यूज हिज पाथ ऑफ अटेनिंग गॉड। तो मैं क्यों बताया, ऐसे डिविएशन से हर एक योगा में ना, हर एक योग पद्धति में कर्म से अटैच होते हैं, ज्ञान योग में ज्ञान से अटैच होते हैं, ध्यान योग में सिद्धि से अटैच होते हैं, अटैचमेंट हो सकते हैं इससे। ओके, so let me stop प्रभु it जी here. मुझे हाँ, प्रभु जस्ट जी अ मिनट, एक मिनट मैं ओके चार्जिंग लगा देता हूँ, चार्जिंग खत्म हो रहा है। I'll take questions after that. Arey, just give me 2 minutes. We'll take your question. Is it okay? Okay. Let me wind it off. Just write your questions so that you don't forget. Yeah. No, I won't forget. Thank you. Okay. So ये 4 yoga, these are the 4 yoga systems which you have discussed. And in Kali Yuga, it is said that any yoga system you follow, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, या Hari Nama must be done. कहते हैं हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. In this age of Kali, Hari Nama must be there in whatever yoga you may follow. खास करके this 16 worded महामंत्रा which we हम लोग जब भी कर रहे थे, आज देखते हैं अगर समय है तो करते हैं. I don't think we have time. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम कलिकल्मषनाशनम. ऐसे there is lot of emphasis on this Hare Krishna Mahamantra. Maybe some other time we'll discuss exclusively on Hare Krishna Mahamantra. But for time being, इतना ही जान ले कि any yoga which we do in this age of Kali, it must be accompanied with chanting of the holy names of Lord. So in this age of quarrel and hypocrisy, the only means of deliverance is chanting of the holy names of Lord. No other way. And this is the conclusion for today. Yeah, I would like you to read one by one, then we'll stop. Neha, you can read the first I'll one. read the first one. Yeah. Bhakti Yoga is the topmost yoga system. All other yoga system culminates in Bhakti. Yeah, either you follow karma, jnana, dhyana, you have to finally, भगवान को पाना है, you have to go through bhakti. Yes. Okay. Second one, can somebody read? Yes, fast. A fruitive worker when offers result to Krishna कर्म योग. फ्रूटिव वर्कर, कर्मयोगी कौन है? जो अपने काम करते हैं, अपना रिजल्ट भगवान को अर्पित करते हैं. नेक्स्ट, somebody please read. I'll read. People Okay. are taking a lot of time. Yeah. One who is addicted to speculative knowledge but takes step to surrender to Krishna, that is Gyan Yogi. हाँ, ज्ञान योगी जो ज्ञान मार्ग से अटैच होते हैं. मैं पढ़ लेता हूँ. One who meditates on super soul, recognizing that he alone is the source of intelligence, is ध्यान योगी जो सुपर सोल, जो कि हृदय के क्षेत्र में, हृदय के रीजन में रहते हैं, परमात्मा के रूप में हर एक के
उसको जो समझते हैं, वन हु मेडिटेट्स, उनको उनके ऊपर जो ध्यान करते हैं, वो ध्यान योगी है। एंड अल्टीमेटली वन हु एंगेजेस इन डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस टू लॉर्ड इज अ भक्ति योगी. We'll stop it here. Any questions? If you have, we'll take it, and we'll have a short quiz. Don't go. Please don't go. I Yes. had a question. I actually joined very late. I almost forgot about the meeting, and then I Okay. suddenly I got reminded. I Okay. wanted to ask you. I don't really understand how karma yoga works. I mean, if somebody has actually no knowledge of anything and he's just working, then does Gita mean that like even if he's surrendering all the results of his work, if he's doing good work, uh, maybe if somebody is an workaholic and he's obsessed with his work, too attached to his work, even then he can achieve Krishna. He can gain Krishna consciousness. How will that हाँ. happen? I don't understand. Just like, see, what is the idea? Just like ना तुमने बताया था, basically कर्म योगा में what is the idea? हम सबका ना कर्म करने का इच्छा तो होता है, और अपना अपना इंक्लिनेशन है, अपने अपने कोई चाहता है, सपोज कल ना यहाँ पर काफी सारे डिवोटीज आए थे, खास करके यूथ आए थे, उसमें ना Okay. कई सारे ऐसे डिवोटीज ऐसे स्टूडेंट्स है, बेसिकली दे हैव डिफरेंट गोल्स. जस्ट लाइक अंश करके एक स्टूडेंट है, he is interested in becoming a fauji. He want to become an Okay. army officer, and So sir okay. at the same time is very sincere devotee. वो भक्ति करना चाहते हैं, right? Okay. And there are students just like Ayushmita has come today morning. I see Ayushmita, and she is interested in cracking IAS की तैयारी कर रही है वो. But she is also interested in practicing bhakti at the same time. Like that, suppose कई सारे ना कपल्स आए हैं कल, वो लोग अपना अपना एक बिजनेस संभालते हैं, बट एट द सेम टाइम भगवान को सेंटर में रख के वो सब कुछ करते हैं. तो कहने का क्या है, वॉट एवर प्रोसेस वी मे वांट टू गो अहेड इन आवर लाइफ, राइट, उसमें भगवान को जोड़ना. क्या मतलब हुआ? जस्ट लाइक कर्म योगा में क्या बताते हैं, सपोज यू आर अर्निंग, यू कैन यूज योर अर्निंग, some part of earning at least, for the propagation of कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान की सेवा में. जैसे कल यहाँ पर प्रोग्राम था, we needed a lot of money to serve Lord. आप देहरादून इस्कॉन में रहते हैं? Yes. अच्छा. Okay. So because प्रोग्राम करना है, we made प्रसादम, at least कल ना 400 लोग प्रसाद लिए थे, तो प्रसादम we wanted money, right? Like this, money can be donated. Not only money, you can give your time, you can give your intelligence in Lord service, right? I don't know how much I explained. Are you are there, Neha? Yeah, I'm here. Yes, I'm here. Basically na karm, see, your interest, you follow your inclination, passion, but जो भक्ति का प्रिंसिपल्स है वो यूज करते हैं, मतलब वो उसके हिसाब से हम कर्म करते हैं और आगे बढ़ते हैं. ठीक है ना? Okay. Okay. ओके. अरे 8 बज गया है, बट आई वुड लाइक टू कंडक्ट Kahoot. Is it okay? Or next time when we meet, should we start with Kahoot? Prabhuji, today we can do it. I am also fine with the quiz. Neha is fine. Aman, बाकी लोग कितने लोग, how many are okay to go ahead with the quiz? अगर क्विज करेंगे, Yes sir, fine. 15-20 मिनट तो मिनिमम लगेगा. 15-20 मिनट, या 21 क्वेश्चंस हैव मेड. अरे एक ही हाथ उठाया, शिवम तो तैयार है. सत्यम इज फाइन, अंशिका, नेहा इज फाइन. बाकी लोग, लुनेश, खुशी, 7 out of 16. अमन को तो ठीक है, अमन इज देयर. शशि, शिवानी, Kahoot किया जाए? सर कैन आई लीव, क्योंकि मेरा भी एक दूसरा क्लास है ऑनलाइन, आई हैव टू अटेंड दैट. अच्छा, ओके. शिवानी कैन कैरी ऑन. हरे कृष्णा सर. हरे कृष्णा.
बाकी लोग दिशा, धवनी, शशि, शिवांश. अरे what should we do? शशि is fine. अमन है नहीं क्या? अमन बाहर चला गया. I think we should do it in the next time. ऐसे ही लग रहा है. 5-6 लोग रेडी हैं. बाकी लोग ओके. वैभव विल डू इट नेक्स्ट टाइम. हाँ, बाकी तो कोई है नहीं. आई थिंक अमन इज नॉट. सत्यम एंड वैभव जी प्रभु जी. नेक्स्ट टाइम करते हैं. जी हाँ. ओके प्रभु जी. ठीक है. तो नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन ही होगी. नेक्स्ट टाइम ऑफलाइन करते हैं. ऑनलाइन ऐसे ही होता है. ऑनलाइन नॉट प्रेफर्ड. पता नहीं भाई, मेरे को समझ में आ रहा है ये जो कोविड आया था तब टीचर्स की हालत कैसा हुआ होगा. टीचर्स अगर पढ़ाना चाहेंगे भी पढ़ा नहीं सकते भाई. क्या सिखाएंगे ऐसे. ना टीचर पढ़ाना चाह रहे थे ना बच्चे पढ़ना चाह रहे थे. हाँ, दोनों है. सही कह रहे. ना टीचर पढ़ाना चाहते होंगे या बच्चे भी पढ़ना चाहते होंगे. Anyway, thank you very much. So I think see next week we are going to Vrindavan. I think I don't know how many of you have joined and how many did not join. So we will not have class next week, but we will share our experiences with you when we meet again offline. So next week we will not have class. Okay. Do make videos. Nice videos you make. Yes. सुन लिया भक्तों, जो भी आ रहे हैं बच्चों बहुत अच्छे वीडियोस बना रहे हैं. Everybody. या अरे कौन बोल रहे हैं? हिंदू भक्ति. नेहा बोल रही. नेहा बोल रही है. अरे why you are not coming? अरे I have to go to Srinagar this week and next week I'll not be here. अच्छा. नाना जी के घर में पूजा है important. ओके. उनके वहाँ जाना है. ओके. नेहा को बहुत अच्छे वीडियोस बना के दो भाई. ओके. नेक्स्ट टाइम she should not miss. Okay. Okay, thank you very much. Aman, we are stopping here because and we will do the quiz next time. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu. Hare हरे Krishna. कृष्ण. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna everybody.